तू ही है महान, प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू ही है महान। तू ही है मेरा जीवन, तू है मेरी शक्ति, तेरी आराधना मैं करता रहूं, तेरी स्तुति। तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरी शक्ति, तेरी आराधना मैं करता रहूं, तेरी स्तुति। प्रभु तू
Praise the Lord, everyone. Thank you for once again joining us for the Bible study. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. So, we are once again gathered to lift up the name of Lord Jesus. As the song said, Prabhu tu hi hai Mahan, and we believe in it that He is the only God who is stronger, who is mightier, and He is present everywhere. Even as we start this Bible study, I would like Mom to pray and lead us with the children ministry. Come, let's pray. Father, we thank you and praise you for this time. Thank you, Father, for gathering once again in your presence, O God. You are the mighty, the stronghold of us, Lord Father. You are a refuge. You are a stronghold, O Lord. We thank you and bless you for who you are, O Lord Father. We thank you for your very presence in our midst, O Lord Father. For your word says, where two or three gather in your name, there you are present in their midst. We bless you for your presence, O Lord Father, and for your promises are always yes and amen, O Lord Father. We thank you and we commit this time in your hand, O Lord Father. We commit all the children in your hand, O Lord Father. The Bible study, everything, the praise and worship, everything we commit in your hand, O Lord Father. In Jesus' most precious name we pray. Amen. So how many of you are happy? Who is sad? Pilu, you are sad? Not happy? Tabitha, you are happy? Happy. Ah, very good. How many of you like rain? How many of you like rain? You like rain? Some people Yes. like, some people don't like, no? And how many of you have seen people running when it rains or when it is a cyclonic rain? How many of you have seen people running here and there to take the shelter so that they'll be safe? You have seen the people running here and there? Yes, no? When it rains, if they don't have the umbrella, they run here and there and see the safest place where they can be without becoming wet. Yeah. So they see for the safest place where they can be. And last 15 months or so, we are all hearing or reading that don't go out, remain in your house and remain safe. Are we listening to this? Are we hearing all this? Don't go out, stay in your house and stay safe. Are we listening or no? And last month when there was a cyclone, we all were advised not to go out. And it is said, stay home, stay safe. This slogan we have heard, no? Stay home, stay safe. But this all our physical safety. All our physical safety. How about our spiritual safety? How about our spiritual safety? What is the safest place for us? Spiritually, which is the safest place for us? Can you all answer? Tabitha? Jesus. Yes, Jesus. It is the presence of God. And Jesus is the safest. We can run to him and we can remain safe. Yes or no? So if we want to remain protected, we need to run to Jesus. We need to run to God Almighty. And it is the very safest place to be in the presence of God without anything. Many people are saying, wait here, wait there, stay home, stay safe. Okay. But in spite of that, many people got infected with the virus and all.
So, but to remain in the presence of God is the safest place for us. So today my topic is dwelling in the secret place. Can you all tell me what is the topic for today? Dwelling in the secret place. Very good. And I have taken the portion Psalm 91. Psalm 91 is my portion for the day. Can we all open a Bible to Psalm 91? Do you all know Psalm 91 is a very powerful prayer of protection? What it is? It is a very powerful prayer of protection. This psalm is the assurance or the promise of God's protection, God's comfort, and God's care. What it is, what it assures us, or what it promises us? It promises us of God's protection, God's comfort, and God's care. Many Christians, what they do, many Christians declare this psalm in their daily prayer life. You all know, many Christians declare this psalm in their daily prayer life. And some people, they claim when they go out, before going out, they say this psalm, okay, because what the promises of protections are given in this psalm, that he will deliver us from the snare of fowler. What are the promises of protection? He will deliver us from the snare of fowler. That is, he'll keep us safe from all hidden dangers. He'll keep us safe from perilous pestilence. What is it? He'll keep us safe from perilous pestilence, that is, safe from deadly or dangerous diseases. He will cover us with his feathers. Okay, he will keep us under his wings. We will not be afraid of the danger at night, or the arrows that flies by day. The arrows flies by day means sudden attack during the day. We will not be afraid of all these things. Or any plague that strike in the dark, or evils that kills in the daylight. We will not be afraid of all these things. God will keep us protected from all these evil things. These are the promises God has made in Psalm 91. The promise of protection from all this evil, from all the dangers. Yeah, and in verse 15 and 16 it says, he shall call upon me and I will answer. What God says? When we will call upon him, God will answer us. He will be with us in trouble. We will have a long life, and he will satisfy us and show us his salvation. So all this God has promised us. But question is, when we will have all these promises of protection? When we will have all these promises of protection? To claim these promises, there is a requirement we need to fulfill. What is that? There is the requirement. We need to do something so that we'll come under this protection, or we can claim these promises of protection. And that verse is verse 1. Can we read? Stuti, can you read verse 1? Psalm 91 verse 1. Na? Yes. Whoever dwells in the shelter of the Most High, Little loudly. whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Very good. It's he who dwells, or whoever dwells in the shelter of the Almighty shall abide in the shadow of Almighty God. Okay.
or he who dwells in the secret place of the Most High shall the shadow of Almighty. Here, the shadow is the protection, protection of of God. It speaks that we are under the protection of God Almighty. But who can stay under the protection of God Almighty? This shadow speaks about the great closeness to God or the intimacy with God. It speaks about the intimacy with God or closeness with God. निकटता we say no in Hindi, that परमेश्वर के साथ निकटता, नजदीकिया. When we stay close to God, we can be under the protection of God. When we walk in the hot sun, some people go to school walking, no? All are not going by bus. Some people go, some children go to school walking. And when they come back, it is a very hot sun, unless we have the umbrella. If we don't have the umbrella, then the sun is very hot and sometimes we feel tired, we are very hot. Then when we see tree, what do? We sometimes feel like going and standing under the tree. That means under the shadow of the tree, isn't it? So to take that shadow of the tree, we need to go near the tree, okay, to take the shadow. Same way, if we need to be protected, we need to go close to our God Almighty. What we need to do? We need to go close to our God Almighty. We need to walk in intimacy with God. We need to walk in closeness with God. Now, what is the requirement? That we need to dwell in the secret place. Do you know what is the secret place simply means? Philo, you know secret place? We have the secret places, no? We play hide and seek, secret place. Yeah. Here, the secret place simply means seeking God. What is the secret place mean? Seeking God, seeking his face, or drawing close to him, drawing near to him, coming close to him, seeking his face. And here it specifically speaks about our prayer time with God. Dwelling in the secret place means what? Suti, can you tell me? Drawing, dwelling in the secret place of God means what? What it speaks about? Stuti? Going to God. Going to God. Going to God, or it is specifically speaks about the prayer time. हमारा प्रार्थना का वक्त. Okay. It is the time we spend with God. The time we spend with God, it is also called our quiet time, our personal time with God. It is only between you and God, nobody else. You are spending the time, you and only God. Okay, we close our door, we go into our room, we close the door, and only we are praying to God, seeking his face. And he who dwells in the secret place speaks of those people who put their complete trust in God, who sits in the presence of God, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं, who are in constant communion with God, that is, जो उसके संगति में निरंतर रहते हैं. Okay, how? Through prayers, through praise and worship, reading his word. And God's word is a love letter. Do you all know that? God's word is a love letter. Okay, we need to read it very carefully. Okay, so secret place is where you communicate with God. The place where you communicate with God, that is a secret place. That is the God's secret place.
there God, there is the presence of God is, where we communicate with God, where we have the conversation with God, okay, where we listen to Him, where we have fellowship with God. It is between you and God. It is not the family prayer time. Family prayer time is not called the quiet time or the personal time. It is between you and God, only you and God. Okay, that is the time God is looking for. And when we will spend the quality time, spend the precious time in God's presence, He will fulfill all these promises, the promises of protection. He will keep us safe and sound. Okay, we know there is no need for us to worry about anything when we spend time with God. Today, I would like to encourage you all to spend some precious time in God's word. Some quality time with God. It is only you and God. Okay, I'll encourage you all to do this, practice this every day. Spend time with God, listen to Him, converse with Him, and we will remain protected. Okay, and it is very important in that time to pray for the self also, praying for self. Okay, did you all understand? Yes. So how many of you all are going to spend quality time with God? Quality time with God. Are you all going to spend or no? Stuti, are you going to spend some quality time with God? Yes. Yes, very good. Hepzibah, प्रार्थना में वक्त बिताएगी? Yes. Yes. Very good. And Philu? Yes. Very good. So every day we need to spend some quality time or the precious time with God. Okay? Reading the word of God, singing praise and worship, everything we can do and spend some. And more important is listen to what God says. And He will keep us protected from everything. Yes or no? On that note, let's have the memory verses. Who will say first? Hepzibah, memory verse. I call on my Lord in my distress. He answers me. Say me, Lord, from thy lips and from distant tongue. Psalm 120. Verse 1 and 2. Verse 1, 2. Very good, Hepzibah. Philomen, Psalm 1 verse 1 to 6. The Lord, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, but whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalm 1 verse 1 to 6. amen. Very good. Enoch, Now I know this, the Lord
The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his sanctuary. And with his victorious right hand. Psalm 20 verse 6. Very good enough. Stuti, Joshua 1 verse 9. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will. Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Joshua 1 verse 9. we could not hear you, Stuti, because the network is not proper, I suppose. Anyways, Yash is there. Matthew 11 verse 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Very good, Yash. Sabita, John 6 verse 51. I am the living bread who came down from heaven. If anyone will eat of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give you is my flesh. very good. Mahima, सिस्टर महिमा का नाम लिया ना आपने? हाँ जी। हाँ, नीति वचन 16 उसका 20वां वचन। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। आमेन। Amen. Amen. Ishita, Hi, praise the Lord. I will bless the Lord at all the time. His praise shall continue be in my mouth. My soul shall make a boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Psalm 34, 1 and 2. yeah. Disha, दिशा आपको वचन बोलना है। दिशा आपको वचन बोलना है। मेमोरी वर्स देख के भी बोल सकती है। I think our video is freezed. There's some network problem. Sister Pooja, can you close in prayer? Pooja sister? लक्ष्मी चौहान, आप प्रार्थना कर सकती है? Yes. Yeah. Closing prayer. Yeah, pray for children. Okay. प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर। आपने हमें और एक नया महीना और इस नए हफ्ते में आप हमें ले आए, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आपका अनुग्रह कृपा हम सब पर है पिता परमेश्वर। हम सुरक्षित जीवित सही सलामत हमारे परिवार में हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस पेंडेमिक में भी परमेश्वर आप हमें सुरक्षित रखे, हमारी सारी आवश्यक को पूर्ण कर रहे, इसके लिए हम आपको
आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, इन सारे छोटे बच्चों को आपके पवित्र हाथों में देते प्रभु, जो ये मेमोरी वर्स याद करते, जो भी ये किड्स मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होते पिता परमेश्वर, आप अपने बुद्धि और ज्ञान से हर एक को भर दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर जो वो वचन पढ़े वो उन्हें स्मरण रहे प्रभु, और वो परमेश्वर वो वचन में और प्रार्थना में आपके साथ समय बिताने के लिए उनकी मदद करे प्रभु। उनके स्कूल की भी स्टडी और एक्टिविटीज को प्रभु अच्छे से करने के लिए आप उन पर दया और कृपा रखे प्रभु, और उनको अच्छी हेल्थ से ब्लेस करे पिता परमेश्वर, और वचन सुनकर वो वचन पालन करने वाले बने, और अपने माता पिता और हर बड़ों का आदर करने वाले बने प्रभु। ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते, सुने और कबूल करें। आमीन। Amen. Lorna, over to you. Please lead us in praise and worship. Praise the Lord, everyone. Before we start today's worship, I'll just like to take a verse from Psalms 107 verse 1. Bhajan Samhita 107 उसका पहला वचन. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. So today, let us remember God, let us remember His goodness in our life, that each and every day as He carries us, as He is faithful to us, let us remember His grace and mercy that is there on our lives. Let us also remember His unfailing love and His faithfulness towards us, and let us worship and exalt His name with a grateful heart. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पे हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पे हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पे हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पे हम आकर
करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ध्यान रख मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में साथ दे मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। काजल आराधना बैटरी की उनसा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ,
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ. Yes, Lord, we thank you, Father, because you are our shepherd, Father God. You are our deliverer, Father God, and you are our healer, Father. We thank you, O Lord, for each and everything that you are doing. We thank you, O Lord, for your blessings, O Lord, that flow in our life each and every day, O Father God, and that we can experience you and your goodness in our life, O Father God. We thank you, O Lord, for this time, O Father God. We thank you for this time of worship, O Father God. Yes, Lord. We even give the time of word into your hand, O Father God. Whatever word will be shared, O Father God, we ask, O Lord, for your blessing, O Father God. You lead us and you guide us, O Father God. Yes, Father God, help us, O Lord, to understand, O Lord, the word that is shared to us, O Father, and help us, O Lord, that my hearts may be receptive, O Father God, and the word may bear fruit in our lives, O Father God, that will glorify your name in return, O Father. Yes, Lord, we thank you and we praise you, O Lord. We give this time into your hands. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lorna, for leading us into worship, and thank you, Mom, for leading the children in the children ministry. We would like to pray for Hemlata. We have got a prayer request for Hemlata, who's not keeping well these days. She's having fever and she is down with body pain. So she has requested to pray for her healing and a covering over the baby, the newborn baby. I would like Monisha to please pray for Hemlata. Father God, thank you, Lord Father, for this time, O Lord Father, gathering us in your name and again giving us an opportunity, O Lord Father, to hear from your word, O Lord. Father God, I submit Father Hemlata sister into your hands, O Lord Father. Lord, you know what she's going through, O Lord Father, and she's having fever and body ache, Lord Father. I pray, Lord, I declare in the name of Jesus Christ healing in our body, O Lord Father. But I also pray that you protect her child, give her strength, O Lord Father, to take care of her child, O Lord Father. And I pray, Father, for your protection over both of them, O Lord Father. I pray, Father, that you heal her, O Lord Father, and give her strength in the body, O Lord Father. Thank you, Lord Father. In Jesus' mighty name I pray. Amen. किसी और के पास कुछ प्रार्थना का विषय है तो हम कुछ देर उन विषयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. Does anyone have any other prayer request? We would like to pray for you. Okay. We would like to dedicate some time towards testimonies. गवाही के लिए हम कुछ समय देना चाहते हैं. अभिषेक पवार गवाही देना चाहता था पर वो प्रेजेंट नहीं है. किसी और को कुछ गवाही देना है तो वो अभी दे सकते हैं. Yes, I'd like to give a testimony. The last time we had requested to pray for my grandmother. She is 98 years old, 94 years old, I'm sorry. And she was having she could not digest the food. Whatever food she was eating, like she could not digest it. And because of that, she was having lots of problem. So by Lord's grace, now she's feeling much better. She even has appetite, like she feels like eating, and whatever food that she is eating, it is getting digested by Lord's grace. So I would like to thank God that even till this age, he's been faithful to her and he's carrying her each and every day. So I am thankful to that and praise God. And thank you everyone for praying. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रभु को
और आप सभी लोग को भी, जैसे मेरा ऑपरेशन था, मैं हमेशा सोचती थी गवाही का टाइम होगा, मैं गवाही भी दूंगी और आप सब लोग को थैंक यू भी कहना था। आप सब लोग ने प्रार्थना किया जब मेरा ऑपरेशन था, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि इतनी परेशानी थी मेरे को और परमेश्वर ने मुझे संभाला सही समय पे, सब कुछ सही, क्योंकि उनकी इच्छा पे मैंने रखा था। प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने दो। इतना टाइम हम ऑपरेशन को नहीं कर रहे थे, पर परमेश्वर का समय आया और सब कुछ अच्छा हुआ। और जैसे मैंने ऑपरेशन कराया और दूसरा दिन जब मुझे होश आया, मैंने 4 तारीख को ऑपरेशन कराया, मेरा 4 तारीख को ऑपरेशन था और 5 तारीख को मैं जब होश में आई और सुबह का टाइम था और मैं जैसे ही उठी और मैंने वचन को देखा 103 Psalm 103, मुझे क्लियरली वचन दिखाई दिया 103। तो मैंने विष्णु को कहा कि मुझे बाइबल दो, तो बोला बाइबल नहीं है अभी इधर। तो मैंने कहा मोबाइल में निकालो, वो वचन मुझे पढ़ना है। मुझे 2-3 लाइन याद था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर, क्योंकि उसी ने तेरे रोगों को चंगा किया और तेरे अपराधों को क्षमा किया और तुझे तृप्त अच्छी वस्तु से तृप्त करेगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन मुझे क्लियरली 103 दिखाई दिया और कहा, ऐसा परमेश्वर मुझसे बातें किया कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। तो सच्ची में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे उपकार किए हैं, मेरी महिमा के लिए, मेरे घर के लिए, हर एक बातों के लिए। मैं परमेश्वर को दिल से, हाँ प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। आज मैं फिर से तेरे परमेश्वर को, मेरे राजा को मैं धन्य कहती हूँ और उसके नाम को ऊंचा उठाती हूँ और मैं झुक कर परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी के लिए भी मैं मन में जब भी गवाही होगा आप सबको भी मैं थैंक यू बोलूंगी। आज गवाही का टाइम था, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने प्रार्थना किया और प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत आशीष। आमीन। किसी और को कोई गवाही देना है? दिशा, क्या आपको गवाही देना है? Okay. I would like Anjali auntie to please pray for the testimonies that were given. We would like to thank God for his faithfulness. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हम आपके चरणों में स्तुति के साथ और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर और आपने उसका उत्तर दिया परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आप पर पूरा भरोसा रखते हैं और परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। हमारी सहायता आपके नाम में है परमेश्वर। जो यहोवा ने आकाश और पृथ्वी बनाया है उसके नाम में हमारी सहायता है और परमेश्वर हमारी आशा आप पे है परमेश्वर। हम आपका फिर से धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम वचन में बढ़ेंगे और आज के लिए वचन में ही देने वाला हूँ। तो आज का वचन का टाइटल मैंने रखा है इन हिज प्रेजेंस। द टाइटल फॉर टुडेज मैसेज दैट आई हैव केप्ट इज इन हिज प्रेजेंस। अब हम जिस समय में रह रहे हैं वह बहुत अलग है। मुझे लगता नहीं कि किसी पीढ़ी ने ऐसा समय देखा होगा जहाँ पर हर राष्ट्र ने यात्रा बंद कर दिया, हर राष्ट्र के दुकान बंद हो गए,
हर राष्ट्र में हर व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, बस घर पे बैठ के अपने आप को अलग करके रखा हुआ है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सबसे नंबर 1 ट्रॉमा या नंबर 1 बीमारी जो है वो है मानसिक बीमारी। यदि आप सभी बीमारियों को एक साथ जोड़ दे तो भी सबसे बड़ी बीमारी, द बिगेस्ट डिजीज एंड द लार्जेस्ट डिजीज विल बी द मेंटल डिजीज। जो मानसिक बीमारी है वो सबसे बड़ा बीमारी रहेगा जो अधिकांश लोगों को पीड़ित करता है। द मेंटल डिजीज इज अ डिजीज दैट afflicts the most of the people around us। यह सबसे बड़ा और सबसे आम बीमारी है। विद सोशल डिस्टेंसिंग, विद सोशल सेपरेशन, लोगों को अलग रहने से, दोस्तों को ना मिलने से और एक दूसरे से अलग रहने से, विद सोशल गैदरिंग नॉट बी पॉसिबल, हम एक साथ नहीं मिलने के कारण, अकेलेपन के कारण, अवसाद के कारण, चिंता के कारण, ट्रॉमा के कारण, ये सब चीजों के कारण मानसिक संघर्ष हमारे जीवन में बढ़ता है और उसका संभावना और बढ़ने का होता है, जो इस कोविड-19 की वजह से हुआ है। और हम में से कोई नहीं जानता कि ये कोविड-19 कितना बढ़ सकता है, पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस पर रोक लगाएगा। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं इफ वी सी इन गॉड्स प्रेजेंस, दूसरी ओर अगर यीशु मसीह की उपस्थिति में देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में देखते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई होती है। मैं यह क्यों कहता हूँ? मूसा एक बार 40 दिनों के लिए ऊपर पर्वत पर गया। वह 40 दिन तक परमेश्वर के सामने अकेला बैठा रहा। एक व्यक्ति के लिए 40 दिन के लिए अकेला रहना उसे पागल कर देगा। कोई इंटरनेट नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई दोस्तों के साथ बातें नहीं। 40 दिनों तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था, कुछ खाया नहीं उसने, और 40 दिनों तक उसने कपड़े भी नहीं बदले, वही कपड़े वो पहना हुआ था। और इस 40 दिनों के बाद ऐसे उदास और पागल होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बाइपोलर और हैविंग ओसीडी और जो कुछ भी आज का स्वास्थ्य विज्ञान आपको कहेगा, ये सब के ऑपोजिट मूसा के साथ हुआ। जब मूसा पर्वत से नीचे आया, परमेश्वर की उपस्थिति से वापस लोगों के बीच में आया, लोगों के पास आया, वह दुखी और उदास होने के बजाय ये भूल जाए कि लोगों के बीच में कैसा रहना है। तो इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग व्हाट इज सिविलाइजेशन, उनके चेहरे पे, मूसा के चेहरे पे परमेश्वर की महिमा चमक रही थी। Moses' face was shining with the glory of God। वह बाकी सबसे ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति एक बदलाव लाती है उसके जीवन में। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में एक बदलाव लाती है। The presence of God makes the difference in our lives। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम काफी समय तक या लंबे समय तक अकेला था, और परमेश्वर ने पाया कि उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। लेकिन आदम उदास नहीं था, वह टूटा नहीं कि मैं अकेला हूँ, वह चिंतित नहीं था कि मैं अकेला क्या करूँगा। क्यों? क्योंकि वह हर दिन परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में हर रोज था। अपने आत्मिक जीवन, the spiritual life that we live, we need to clear our spiritual life and be with Him in His presence, because God's presence makes all things clear for us. Now, a lot of times the situations around us wants us and push us into really सोचने के लिए कि जीवन क्या है। बहुत आज के समय में हम देखेंगे तो बहुत सारे मूवीज ऐसे निकले हैं जो मैं परसों ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये 7 और 8 मूवी बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि ये ऐसे मूवी है जो वायरस या जो घातक चीजें हैं जो धरती पर फैल रहे हैं और इस धरती को नाश कर रहे हैं। और उन लोग बताते हैं कि सब मनुष्य जाति वाइप्ड आउट, ऑल द ह्यूमन रेस हैज वाइप्ड आउट, एंड हाउ द एनवायरनमेंट, कैसे ये
एनवायरनमेंट हरा हो रहा है वापस, क्योंकि हम मनुष्य उसको खाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए नहीं है। इट्स अ वेरी डेडली फीलिंग, आई नो, यह बहुत खतरनाक विचार है, लेकिन यह ही वो समय है कि हम परमेश्वर की वाचा को याद करते हैं, जिसने इस ग्रह को बनाया। उत्पत्ति 9:11 में लिखा है कि he established a covenant with you, उसने हमारे साथ एक वाचा बांधी है कि वो कभी इस पृथ्वी को वापस नाश नहीं करेगा पानी से। The verse says that I establish my covenant with you that never again all flesh be cut off by waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy this earth. उसने कहा कि वो ये पृथ्वी को वापस नाश नहीं करेगा पानी से, और उसने यह भी कहा कि ये इस पृथ्वी को फिर से तब वो नष्ट करेगा जब अग्नि से, वो अग्नि से ये पृथ्वी को नष्ट करेगा। तो हम we can be at peace that this coronavirus is not going to eat us, is not going to wipe us clean of earth. Where does it say? वो कहाँ कहता है कि परमेश्वर अग्नि से इस पृथ्वी को नाश करेगा? वो कहते हैं 2 पत्रस 3:7 में, 2 पत्रस 3:10 में, और मलाकी 4:1 में। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। मलाकी 4:1, दूसरा पत्रस 3:7 और 3:10। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर विज्ञान की भविष्यवाणी से, हर हॉलीवुड की भविष्यवाणी से, जो crystal gazers, the prophets, the prophetess, the soothsayer who say that coronavirus or any virus can destroy the earth and this planet will be wiped off, मैं कहना चाहता हूँ ये COVID-19 ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक भाग है जो बीत जाएगा, and humanity will survive and will thrive and will move on. मानव जाति इस COVID-19 से जीवित रहेगा और पनपेगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। यीशु मसीह अपना कुर्सी को खाली नहीं किया हुआ है। परमेश्वर ने अपनी कुर्सी खाली नहीं की है कि हम किसी और को वोट करके उसको अधिकार दे इस पृथ्वी पर राज करने के लिए, परंतु परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। सवाल ये है कि क्या हम अपने जीवन में उसे उस सिंहासन पर बैठने देते हैं? Is he on the throne of your life? वह हर एक चीज के सिंहासन पर है जो भौतिक है, जो कुछ भी प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य वह उसके जीवन के सिंहासन पर नहीं है। उसने हमें वो फ्री विल दिया हुआ है। वह उनके जीवन पर शासन नहीं करता है जब तक कि हम उससे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं करते हैं। God does not rule upon our life until and unless we invite him to rule in our lives. So there is the gap between where what God can do and what God will do. क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, ये परमेश्वर को हमारे जीवन में रूल करने के लिए आमंत्रित करना है। इसके लिए एक बड़ा सा अंतर आता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर हर बीमारी को चंगा कर सकता है, हर बीमारी को निकाल सकता है, लेकिन क्या मानवता परमेश्वर को वह आमंत्रण देगा कि आप आए और हमारे जीवन में राज करे, हर चंगाई हमको दे दे, और जो कुछ बुरा हम में है वो हमसे निकाल ले? यह एक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है। दिलचस्प बात तो यह है कि लोग चिंता करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा, मेरे जीवन पे राज करेगा। Many people have this question that will God reign in my life? In fact, there are many more people who don't believe in God, but yet they are angry with God because of COVID-19. Like, you don't believe in God, then why are you angry about COVID-19 with God? You should be angry with COVID-19. Or is it that
you believe God exists, but you are too reluctant because you have not given him the throne, his throne in your life. क्या आप जानते हैं कि उसे आपके जीवन में राज करना चाहिए, आपके जीवन के सिंहासन पर बैठना चाहिए, पर आपने उसे वह स्थान नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आप चिंता हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो। मुझे दो प्रश्न इस I want to ask two questions right now. What if the disease were to come to you? Are you in connection with God, at peace with God, that if you want to hit eternity, you will be home in heaven with him? क्या होगा अगर बीमारी आ जाए आपको? क्या आप परमेश्वर के संबंध में हैं? परमेश्वर के साथ शांति में है कि यदि आप आज मर जाते हैं तो आप आज के दिन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगे? और दूसरा, क्या आपने बाइबल के विश्वास को अपने जीवन में राज करने दिया है ताकि आप अपने जीवन में उसकी चंगाई को अनुभव कर सके और उसके सुरक्षा को अनुभव कर सकते आपके जीवन में? Having asked these two questions in positive affirmation of God's healing, that God is interested, बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को नष्ट नहीं करना चाहता। बाइबल का परमेश्वर न्याय और नाश और चोट करना नहीं चाहता। बाइबल का परमेश्वर क्षमा करना चाहता है, वो प्रेम करना चाहता है और चंगाई देना चाहता है। और मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस बाइबल के परमेश्वर में, क्योंकि बाइबल कहता है कि जो भी लोग उसकी ओर मुड़ते हैं वो हमेशा उन्हें आशीषित करता है। The Bible says that whenever people have turned to him, he has always blessed them, even though whatever their downfall is. इस समय मुझे सिर्फ एक स्टोरी मेरे मन में आता है इज़राइल के बारे में। कुछ हफ्तों पहले इज़राइल ने पूरिम उन्होंने फसह का पर्व मनाया और पूरिम बनाया। ये हर साल प्रतिवर्ष उन लोग मनाते हैं और ये जो उत्सव है वो बाइबल में से है। कुछ 2400 या 500 साल पहले ये एक परिस्थिति था आज के पर्शिया, ईरान, इराक में, जो उस दिन के बेबीलोन उस समय का बेबीलोन था। उस समय एक स्थिति ऐसे आई थी, एक राष्ट्रीय मनोदशा हुआ था कि हर एक यहूदी को मारने के लिए उन्होंने एक तारीख, एक समय उन्होंने they decided a date and time जहाँ पर सभी यहूदी समाज और इब्रानी लोगों को मार दिया जाएगा। आज के इजरायली लोग जो उनके जो पूर्वज थे जो 2500 साल पहले थे, उन्हें एक विश्वास की परीक्षा और अस्तित्व के परीक्षा से निकलना पड़ा जब वो राष्ट्रीय सूचना हुआ कि उन लोग सब यहूदी लोग को मारने वाले थे। तभी एस्तर और मोर्देकाई, एस्तर जो उस समय की रानी थी और मोर्देकाई उसके अंकल जो पैलेस में काम करते थे, उन्होंने निर्णय किया कि वो 3 दिन के उपवास और प्रार्थना के लिए उन लोग चले जाएंगे। और उनके 3 दिन के उपवास और प्रार्थना के अंत तक वो जो बड़ी विपत्ति थी, जो कोविड-19 से भी बड़ा था, क्योंकि कोविड-19 इतना छोटा है कि हम अपने नग्न आंखें से भी उनको नहीं देख सकते, परंतु वो जो राष्ट्रीय सूचना निकला था कि सभी लोग आपको ढूंढेंगे, आपका पीछा करेंगे और आपको मार देंगे, ऐसा आप अपने आप को ऐसा अलग नहीं कर पाते थे कि कोई आपको आके ना मारे। आप कोविड में आप अपने आप को अलग कर सकते हैं, पर उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था कि आप अपने आप को अलग कर सकते, क्योंकि लोग आपको ढूंढने वाले थे, आपका पीछा करने वाले थे और आपको मारने ही वाले थे। परंतु उस 3 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद क्या हुआ? उस 3 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद वो हुआ जो आज हम उत्सव मनाते हैं, पूरिम, जो इज़राइल का राष्ट्रीय उत्सव है, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु की सारी विपत्ति को उलट दिया उनके जीवन में। The God overturned the entire plague of death. परमेश्वर ने वही चीज इजराइली के साथ किया था जब वो मिस्र में थे। परमेश्वर ने सारे इजराइलियों को सुरक्षित रखा उस विपत्ति के समय में जो मिस्र के लोगों पे था। और मैं आपको बाइबल के परमेश्वर से मिलवाना चाहता हूँ, जो कल, आज और युगाने युग एक सा है। वो कभी ना बदला है, वो
स्वर्ग में ना बदला है, वो अपने चरित्र में ना बदला है, वो ही है। हमारे फोन का बैटरी कम हो सकता है, मेडिसिन इस पृथ्वी से खत्म हो सकता है, खाना इस पृथ्वी से खत्म हो सकता है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो युगाने युग एक सा रहेगा और उसके पास वो क्षमता है कि हमारे जीवन में सब कुछ बदलने के लिए, हमारे जीवन के फॉर्च्यून्स बदलने के लिए। तो हमें सिर्फ विश्वास करना है कि हम सब विजयी और मजबूत होकर निकलेंगे, क्योंकि मनुष्य से जो भी असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। हमारी सरकार जो कुछ भी कर सकती है वो कर रही है इस समय। वो चाहते हैं लॉकडाउन हो, वो लॉकडाउन चालू है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने उनके ऊपर ऐसे अनुग्रह और ऐसे समझदारी उनको दी है। परंतु हमें ये भी जानना है कि परमेश्वर हमारे ऊपर उसकी कृपा और उसका अनुग्रह डालना चाहता है। He wants to impose his grace on you. He wants to impose his blanket of healing on you. परमेश्वर अपनी चंगाई का कंबल हमारे ऊपर ओढ़ना चाहता है। परमेश्वर आप पर उसकी अनुग्रह उंडेलना चाहता है। ये चंगाई और कृपा दोनों को एक शब्द में कहना चाहूँ तो मैं इसे परमेश्वर की उपस्थिति कहना चाहूँगा। परमेश्वर की उपस्थिति एक पैकेज है। It is a package and I want to take your attention to Exodus। मैं आपका ध्यान निर्गमन 33 और वचन 14 में लेके जाना चाहता हूँ। Exodus 33 verse 14. Anyone can read? निर्गमन 33 वर्ष 14। And he said, my presence will go with you and I will give you rest. उसने कहा कि उसका उपस्थिति हमारे साथ जाएगा और वो हमें विश्राम देगा। मैं भी कोविड-19 से बहुत गुस्सा हूँ, जैसे कि आप और सभी लोग गुस्सा है, परंतु हमें इस बात में भी आनंद मनाना चाहिए कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, your rod and your staff they comfort me. हम इस स्थिति में अकेले नहीं है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु को बताए कि आप उसके वादाओं के प्रति आप कितने आभारी, आप मानते हैं कि उसने आपसे जो वादे किए वो निभा रहा है। तो जैसे कि एक्सोडस निर्गमन 33:14 में कहा है कि He's present and he said, my presence will go with you and I will give you rest. मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। लोगों ने अपने आप को अलग किया है दूसरे लोगों से, उन लोग एक दूसरे को नहीं मिल रहे, परंतु हमें परमेश्वर से अलग नहीं होना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं होना है, परंतु हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और अंदर जाना है। और ये ही परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं यहाँ पर 3 चीजें कहना चाहूंगा इस वचन से। there's this problem, एक समस्या, एक प्रार्थना और एक प्रतिज्ञा। The problem, the prayer and the promise. समस्या क्या थी? समस्या हम सब जानते हैं। जोस ब्रदर हमें 1 साल से निर्गमन से ही सिखा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कैसे क्या समस्या थी। हम 80 वर्ष के पूरे बैकड्रॉप में नहीं जाएंगे, परंतु हम सिर्फ वो 33 चैप्टर में जाएंगे निर्गमन के। तो मूसा जब पर्वत पे प्रार्थना करने के लिए गया, मूसा 40 दिनों के लिए प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर गया परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत अच्छी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो आपको ऐसे बाहर आना अच्छा नहीं लगेगा। ये समझाने के लिए हम जब 3 दिन के कैंप के लिए जाते हैं चर्च के द्वारा, तो हमें कैसे तीसरे दिन अच्छा नहीं लगता है वापस आने के लिए,
क्यों? क्योंकि हम उधर परमेश्वर की उपस्थिति और हमारे भाई बहनों के साथ जो सहभागिता में है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन से कुछ अलग, और हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम नहीं आना चाहते। ऐसे ही होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। तो मूसा उधर पर्वत पे 40 दिन के लिए था, और इज़राइल लोग उस समय अपने रास्ते पे थे कनान, जो वादा किया हुआ देश था। तो उन लोग मिस्र से बाहर आ चुके हैं और कनान के पास पहुंच रहे, परंतु उन लोग पहुंचे नहीं है। हम में से बहुत लोग वैसे ही है। हम बाहर निकल चुके हैं जहाँ से हमने परमेश्वर ने शुरुआत की है, और हम उस रास्ते पे है, पर हम वहां नहीं पहुंचे जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। और मूसा उस समय उन लोगों को वहां नीचे छोड़कर ऊपर पर्वत पर चला गया। तो इज़राइल लोग 40 दिन तक रुके, और उन लोग बोर होने लग गए, और उन्होंने मूसा के बड़े भाई हारून से कहा, हारून, हम थक चुके हैं, हमें एक परमेश्वर चाहिए जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। जब तक मूसा उनके साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल लोग के साथ थी। परंतु जैसे ही मूसा उनको छोड़ के पर्वत पर चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति ने इज़राइल लोग को भी छोड़ दिया। यह बहुत मजेदार बात है कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इज़राइल लोग ने ऐसा क्यों नहीं परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, अगर आपको कुछ आपत्ति नहीं है तो क्या आपकी उपस्थिति हमारे साथ भी आ सकती है? कि ये एक विचार किसी भी इज़राइल के पास नहीं आया, हारून के पास भी नहीं आया। परंतु मूसा जिधर भी जाता था वो कहता था, परमेश्वर, मुझे आपकी उपस्थिति मेरे साथ चाहिए। तो परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। तो जब वो पर्वत पर ऊपर चला गया, तभी भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ था। पर नीचे उन लोग बोर हो गए, उनको दे वर वेरी बोर्ड, और उन्होंने हारून से कहा कि हमें एक रिलीजियस आइडेंटिटी चाहिए, हमें एक धार्मिक पहचान चाहिए। वी नीड सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल आइडेंटिटी, एक पारंपरिक पहचान चाहिए, और वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। तो हारून ने क्या किया, उसने सोना और चांदी लेकर एक पुतला बनाया, और वो पुतले को उन्होंने आराधना करना चालू किया। वो पुतले के दे स्टार्टेड सिंगिंग एंड वर्शिपिंग द आइडल। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा उस पर्वत पर, मैंने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी है, और ये लोग जो नीचे घाटी में नीचे, उन्होंने 10 आज्ञाएं ऑलरेडी तोड़ दी है। मैं इधर 10 आज्ञाएं दे रहा हूँ, और नीचे उन्होंने आइडल बना के उसकी आराधना करके वो 10 आज्ञाएं का उल्लंघन किया हुआ है। तो तू इधर मत बैठ, परंतु नीचे जा और उनको समझा। परमेश्वर ने मूसा को उसके प्रार्थना के समय से भगाया। मैंने कभी नहीं सुना है कि परमेश्वर ने किसी को भगाया। मैंने हमेशा सुना है कि लोग रुकते हैं कि प्रार्थना का समय खत्म हो, फिर मैं निकल जाऊं। परंतु परमेश्वर ने मूसा को भगाया, क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ बहुत टाइम तक था। यह बहुत मजेदार बात है कि हम सबको लाल समुद्र को 2 भागना है, हम सबको आकाश से अग्नि लाना है, पानी लाना है, परंतु किसी को परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताना है। परमेश्वर की उपस्थिति वो कुंजी है ईसाई जीवन के लिए। God's presence is the key to a Christian life. तो मूसा जो है, परमेश्वर उस मूसा को बोलता है कि तू नीचे चले जा, और जब मूसा नीचे पहुंचता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो सोचता है कि ये क्या, मैं 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, और आप लोग ने ये सब करना चालू कर दिया। तो इट इज लाइक गॉड, बिकॉज गॉड्स प्रेजेंस, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल लोग के साथ नहीं थी, उन लोग ने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे परमेश्वर के पास जाने की कोशिश की। Because God's presence was not with the Israelites, they were not in the presence of God. They went astray from their path. Now that's another thing, that even people with flaws and character, God is willing to give His presence. एक गलती जो हम सब करते हैं वो है कि क्या परमेश्वर हम मेरे घर में आएगा, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा, क्या परमेश्वर मेरी इस स्थिति में आएगा जहाँ पर मैं हूँ। परमेश्वर आएगा,
बाइबल का परमेश्वर जिधर आप उससे आमंत्रित करते हो वो आएगा, जिधर आप स्वागत करते हो उसको वो आएगा। सिर्फ एक आमंत्रण की जरूरत है। यह केवल एक आमंत्रण की बात है। अगर आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हो वो आएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी रचना की है और वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे अधिक प्रेम करता है। आप ही लव्स यू मोर देन यू लव योरसेल्फ। आप अपने आप से इतना प्रेम करते हो कि आप स्वयं के लिए जीना चाहते हो, परंतु यीशु मसीह आए हमारे लिए और वो मरे हमारे लिए। इतना प्रेम उसने हमसे किया। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि मूसा गुस्सा था और वो एक दंड लाया लोगों पे। उसने सब चीजें की, उसने दंड दिया लोगों को। ही पुट ऑल थिंग्स इन ऑर्डर। उसने सब चीजें सही की और उसके बाद वो कहाँ जाता है? वो वापस से परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर भागता है। मूसा ने अपने आप को शांत किया और वापस से परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। आप कहाँ जाना चाहते हो? हम सब घर के बाहर भागना चाहते हैं। इस कोविड के समय में हम बस बाहर जाना चाहते हैं, दोस्त लोग को मिलना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। लोग डरते हैं आज की दुनिया, आज के समय में बाहर जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए भी। लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे ये बीमारी आ सकती है। लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, पर डर रहे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरे को क्या हुआ है। और ये सही, दिस इज नॉट द राइट वे टू रिएक्ट टू थिंग्स। और प्लीज वो समाचार न्यूज मत देखा करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कोविड और जो भी बीमारी, फंगस जो भी है, उससे ज्यादा जो जल्दी फैल रहा है वो है चिंता। चिंता और डर जो समाचार के द्वारा आता है। हमें वो समाचार कंटिन्यूसली नहीं देखना चाहिए। हाँ, हमें देखना है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, परंतु हमें ये भी जानना है कि जो भी लोग कोविड से पीड़ित हुए उसमें से 97 लोग चंगे होके घर भी आ चुके हैं, परंतु 100% लोग जिन्होंने वो न्यूज पढ़ा है वो अभी भी पीड़ित है उसके डर से। लोग जो समाचार वो लिख रहा है, जो व्यक्ति को समाचार छाप रहा है, उसके लिए उसे वेतन मिल रहा है, इसके लिए वो उससे इतने जुनून के साथ इतने कष्ट करके कर रहा है, परंतु आपको कुछ पगार नहीं मिल रहा है वो सारे चिंता, वो सारे डर को पालने के लिए। यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ payment to keep that anxiety and keep that fear in you. So do not bathe yourself and do not saturate yourself with the news. अपने आप को उस समाचार में ना डुबाए, परंतु परमेश्वर के वचन में डुबाए जो कहता है कि वो आपको चंगा करेगा। तो हाँ, हमें कहाँ भागना है? इसके बाद मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में वापस भागना चाहता है, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में भागना चाहता है, परंतु परमेश्वर अभी उससे गुस्सा है। परमेश्वर कहता है कि नहीं मूसा, मैं ये लोगों से बहुत गुस्सा हूँ। इन लोग सिर्फ रुके एक गलती करने के लिए, इन लोग रुके मेरे को परेशान करने के लिए, इन लोग रुके मेरे अवज्ञा करने के लिए। वचन कहता है 32:9 में, वे हठील लोग हैं। तो मूसा कहता है कि परमेश्वर आप ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते हो, परमेश्वर आप ऐसे उदास नहीं हो सकते हो। परमेश्वर ये वह समूह है, ये वह लोगों के समूह है जिसने आपने चुना हुआ है और जिसने आपने बाहर निकाला हुआ है। तो परमेश्वर कहता है मूसा, नाइस स्पीच मूसा, बहुत अच्छा प्रचार किया तूने, मैं मेरी स्वर्गदूत को तेरे साथ भेजूंगा, जा तेरा स्वर्गदूत तेरे साथ आएगा। मूसा कहता है नहीं परमेश्वर, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्या मैं अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। ये वह लोग हैं जिसने आपने उनसे इतना प्रेम किया कि आपने उन्हें बाहर निकाला है और एक चुना हुआ राष्ट्र माना हुआ है। कैसे लगेगा जब लोग देखेंगे, राष्ट्र के लोग देखेंगे कि जिन्होंने परमेश्वर ने जिसको चुना वो व्हाट इज द विल्डरनेस, मरुभूमि में मर गए, मरुभूमि में उन लोग का नाश हो गया। कैसे लगेगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि लोगों ने पाप किया आपके प्रति, परंतु आप दयालु परमेश्वर है जो इन सबको माफ कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, आई एम टच्ड, गॉड सेड, इट्स माय वर्ड्स, डू नॉट टेक इट टू सीरियसली।
परमेश्वर ने कहा कि आई विल गो विथ यू, मैं तेरे साथ चलूंगा. We always want to honor God, and we want to always honor God. It says in 1 Samuel 2:30 में कहता है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा. Them that honor me, I will honor them. मूसा ने परमेश्वर की आदर की और परमेश्वर ने उसके विपरीत, in accordance with his honor, God honored him. तो परमेश्वर ने मूसा का प्रार्थना सुना और मूसा से कहा कि मैंने तेरा प्रार्थना सुन लिया है और मैं तेरे से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा. 2 शब्द, उपस्थिति और विश्राम. उपस्थिति और विश्राम साथ में जाएगी जहां पर भी तू जाएगा. The verb in the scripture is the word my presence is going. मेरी उपस्थिति चल रही है, मेरी उपस्थिति हिल रही है आपके साथ. हम सब इस संसार के परमेश्वर को जानते हैं कि तो ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो एक जगह पे अटके हैं, जो एक जगह पे बैठे रहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य ने बनाया हुआ परमेश्वर है. वो ना ही बोल सकते हैं, ना ही हिल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं. परंतु मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ बाइबल के परमेश्वर से, जो आपके साथ जाएगा और आपको विश्राम देगा. ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर परमेश्वर नहीं जा सकता. परमेश्वर आपके साथ हर जगह रहेगा. माई गॉड इज एवरीवेयर. इस समय मुझे ये याद आता है, देयर वाज दिस कम्युनिस्ट मैन हु वेंट टू स्पेस. पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया वो एक रशियन व्यक्ति था और वो एक कम्युनिस्ट व्यक्ति था. तो जब वो वापस आया स्पेस से तो लोगों न्यूज़ वालों ने उसको पूछा, क्या आपने परमेश्वर को बाहर देखा? तो उसने कहा, मैंने परमेश्वर को तो बिल्कुल भी नहीं देखा. परंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो मून, जो चांद पे चलने वाला पहला व्यक्ति है, जब वो वापस आया तो लोगों ने उसको पूछा कि डिड यू सी गॉड? क्या आपने परमेश्वर को वहां देखा? तो उसने कहा, ओ व्हेन आई लेफ्ट द प्लैनेट अर्थ, all I could see was beautiful presence and the work of God. उसने कहा कि जैसे ही मैंने पृथ्वी को छोड़ा, मैंने परमेश्वर की सुंदर रचना और उसकी उपस्थिति को देखा. उसने क्या क्या बनाया है. दोनों व्यक्ति सही थे. जो रशियन मैन था वो भी सही था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो भी सही था. रशियन मैन वो ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, परंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग वैसा था. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक मसीह था. वो यीशु मसीह में विश्वास करता था और वो उसके पास एक संबंध था परमेश्वर के साथ. इसके लिए उसने हर चीज में परमेश्वर की उपस्थिति को देखा. हर छोटी से छोटी चीज में उसने परमेश्वर के हाथ को देखा. तो इसलिए दोनों सही थे. परंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड दी इंटिमेसी विद गॉड. उसके पास परमेश्वर के साथ एक संबंध था कि वो जानता था कि हर चीज में परमेश्वर का हाथ था. Trust me, end of the day, God is willing to reveal His presence to you, whoever seeks Him. परमेश्वर सभी लोग को अपनी उपस्थिति देना चाहता है. परमेश्वर बहुत बड़ा है और वो कुछ प्राप्त नहीं करेगा अपने आप को साबित करके. किसी को भी अपने आप को साबित करके वो कुछ प्राप्त नहीं करेगा. परंतु वो लोग जो उसे प्रेम करते हैं और वो लोग जो उसके विश्वास करते हैं, वो सब कुछ करेगा उनको अपना प्रेम महसूस करवाने के लिए. Those who love him and those who trust in him, he'll do everything to prove his love and greatness in your life. उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी. परमेश्वर बाइबल कहता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानता. और उसका प्रतिज्ञा ये है कि उसकी उपस्थिति चलने वाली उपस्थिति, एक जीवित उपस्थिति आपके साथ रहेगी और आपको विश्राम देगी. विश्राम किस चीज से? विश्राम चिंता अनुगाई से, द एंजाइटी ऑफ लीडरशिप. चिंता प्रावधान से, द एंजाइटी ऑफ प्रोविजन. चिंता उस चीज से कि मैं क्या करूंगा. चिंता उस चीज से मैं आगे कैसे बढ़ूंगा. प्रावधान कहाँ से आएगा.
मैं बोलता हूँ कि उस मरुभूमि में, उस विल्डरनेस में हर चीज की कमी थी. There was no immunity in the desert. उस मरुभूमि में कुछ इम्यूनिटी नहीं था. 2 मिलियन लोग उस डेजर्ट में, the conditions of life were terrible. There was no pharmaceutical, there were no masks, there was no disinfectant, there was no hand rubs. वहाँ पर कोई साबुन नहीं था, कोई मास्क नहीं था, कुछ भी नहीं था. उधर पानी तक नहीं था, एक बहने वाला पानी नहीं था. उधर ग्रीनरी नहीं था, उधर फल और वेजिटेशन कुछ भी नहीं था, एक शेल्टर भी नहीं था सर छुपाने के लिए. परंतु परमेश्वर ने उस मरुभूमि में उनको सब कुछ दिया. उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया. उनको सुबह के समय में the cloud, he gave them the cloud, and night he gave them the cloud of fire. उन्होंने उनको he gave them food. What was that? मन्ना. हाँ, परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया. उस मरुभूमि में 40 साल तक उसने सब कुछ संभाला उनके लिए और उनको विश्राम दिया. इसका मतलब क्या है? हमें किसी भी चीज के बारे में we have to not be stressed about anything, and because we are not in control, but we have to give him the control of our life. और इस महीने मेरे को ये आपको बोलना है कि हमें उसके प्रतिज्ञा पे मनन करना चाहिए. उसका प्रतिज्ञा क्या है कि उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी और वो आपको विश्राम देगा. So this was the word that I wanted to share. The presence and the rest, they both go hand in hand. परमेश्वर एक पैकेज देता है विश्राम और उपस्थिति का. पर ये मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबाना चाहिए. We need to know God's word. Who is He and what is He capable to do in our life? He is capable to do everything. वो सब कुछ करने में सक्षम है. परंतु हम क्या उसे आज्ञा देते हैं? हम क्या उसे आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन में आके वो कार्य करने के लिए? हमें वो प्रश्न अपने आप से पूछना है. अंत करने से पहले मुझे एक गाना लेना है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. That's where I am strong, in your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong, seeking your face.
आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we received your word for our life today, O Lord. We thank you, Lord, because you will never fail. You are a faithful God, and we thank you for your promise that my presence will go with you and I will give you rest. For the members of a family that are maybe in different states of India, different parts of the world, for the members of our home, O Lord, that require to travel out in the weeks, in the coming week, O Lord, or may have to do other things in the midst of this struggle of today's social problems, today's healthcare problems, O Lord. God, your promise says that your presence is going to come with us, Lord. For sure, God, your presence is greater than any fear of any negativity. God's presence is greater than any damage that can come, O Lord. God, your presence is greater than the enemy who can confuse you, who can confuse us, O Lord. We thank you, O Lord, for your presence that will go with us, O Lord. Many of our plans are completely messed up and we don't know how to move forward, O Lord. But you are saying that you will take care of everything in this time. All our schedule has been changed, but everything is going to be fine. You say your presence will be with us and we do not need to worry. We only need to rest in your presence. We will have no reason to be distressed. We will have no reason to be anxious, O Lord. We receive your rest, O Lord. Father, I receive your rest today. Lord Jesus, I receive the rest you can give. And we welcome your Holy Spirit in our life. Heavenly Father, we want to thank you so very much for this beautiful Bible study, O Lord. We are living in such odd situations where we are not able to come together physically. But thank you, O Lord God, that you have provided us with this Zoom Bible study where we can meet together and we can be in your presence, O Lord. We thank you that your protection. We thank you, God, for your provision. We thank you for your presence of guidance, your presence of clarity, your presence of healing. We thank you that today we are praying and your blanket of protection is upon us, O Lord. Your presence is with us in every heart, in every soul, O Lord, and no evil will come near us, Lord. That your mighty name, the mighty name Jesus Christ, has rebuked every plan of the enemy, and we speak the goodness of God, O Lord. We love you, O Lord God, and we especially at this time pray for the authorities, for the people who are in power, that your goodness will rest upon them, O Lord. Your wisdom, understanding, and knowledge will be on them, that their service will be beneficial to the society, that their choices will be right. And we pray for a mighty revival amongst our people, O Lord. We pray that by your blessings, humanity will find a quick cure from the all kind of diseases, O Lord. That your blessing and mercies will flow in each and every person's life, O Lord. Heavenly Father, we want to thank you that even in this darkest hours of our lives, you can be the brightest, O Lord, because you are with us and we welcome you, O Lord. We welcome you to be the ruler of our lives. Let no situation, let no sickness, let nothing else rule our life, but you and you alone be the master of our life, O Lord. We pray for our homes, we pray for our careers, we pray for our health, we pray for our nation as a whole, O Lord. We pray for your blessing on it, and we thank you that we can have a wonderful future because your promises are yes and amen towards us, O Lord. We thank you, we will have a wonderful future because you are with us. And we love you, O Lord. We surrender ourselves, we surrender our lives into your hand, O Lord. Take control of it in our coming weeks and keep us safe and sound, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Thank you, Joash, for sharing the word. God bless you. God bless you all. एक सूचना है सभी के लिए, मैं पिछले 2 बाइबल स्टडी से मैं भूल रहा हूँ बोलने के लिए। मैं कुछ महीने पहले आप लोगों से कहा था कि हम प्रभु की इच्छा हो तो हम सील आश्रम में जाएंगे। तो इस महीने में, जुलाई महीने में अगर हो सके तो हम जाना चाहते हैं।
वहाँ पे मैंने बात किया है, तो वे लोग तैयार है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा था यदि कपड़े या ऐसे कोई भी चीज़ है जो आप दान देना चाहते हैं तो आप तैयार रखिए। यदि किसी को डोनेशन देना है पैसों का तो वो आप दे सकते हैं। कोई भी तरीके से आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं आप कर सकते हो। लेकिन जब मैंने उन लोगों से बात किया, सील के अधिकारियों से, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि कपड़े जो है जो पहनने लायक नहीं है ऐसे कपड़े कृपया करके मत दीजिए। अक्सर ऐसा हमारा मनोभावना होता है ना कि हम नहीं पहन सकते या बहुत बुरा अवस्था में है, कैसे भी हो किसी को दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि अच्छे कपड़े हैं तो दो चीज याद रखिए, वो आपको धोना है, धोकर इस्त्री करके अच्छी तरह से तैयार रखिए। ये दो चीज आपको करना है। अगर कपड़े अच्छे नहीं है, पहनने लायक नहीं हो, कृपया करके मत दीजिए। दूसरा चीज, जो आ सकते हैं वही आइए, कोई उसमें दबाव नहीं है किसी के ऊपर कि सब लोग आना ही है। तो जो आ सकते हैं वही आइए। और ये कलीसिया के तरफ से नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से हम जाना है, जिनको भी जाना है जा सकते हैं। तो कृपया करके आप बताइए मुझे यदि आप आना चाहते हो। और ये पिकनिक जैसे नहीं है, वहाँ पे हमें जाकर उनको आशीष का कारण बनना है। कुछ अगर सेवकाई वहाँ पे करना है मिलकर वो कर सकते हैं। जल्दी जाकर वहाँ पे यदि जिन किसी को उनको वहाँ पे किचन में मदद करना है, किचन में मदद कर सकते हैं। वहाँ पे रहने वालों को, निवासियों को मिलना है, उनके साथ दो बातें उनको आश्वासन देने के लिए करना है, तो ऐसे समय बिता सकते हैं। तो Brother, when will be the date? हाँ, गुड क्वेश्चन, सॉरी। तो तारीख तय नहीं किया है। मुझे पता नहीं जुलाई में कोई बैंक हॉलीडे या ऐसा कुछ है क्या, तो आप लोग मुझे 21st is a bank holiday. 21st, ओके, बकरी ईद है 21st को। हम कोशिश कर सकते हैं 21st को। आप अपने अपने सुझाव को भेजिए मुझे। आपको यदि कोई सजेस्ट करना है, सैटरडे को ही जाना है ऐसा कुछ, या छुट्टी का दिन, आप बताइए, हम साथ मिलकर तय करेंगे। कोई भी तारीख डिसाइड नहीं किया है। और और कुछ नहीं, प्रार्थना में रखिए ये विषय को प्रार्थना पूर्वक, क्योंकि ये निर्णय बदल भी सकता है, क्योंकि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, कोविड का परिस्थिति, तो उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. Thank you, Joyash, Thank you. once again. Praise the Lord. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. આપણે જવાનું આપણે જશું ના